Now you can see, this is the step number 9, mineral and energy resources. We did the metallic and non-metallic minerals. So, Basil Raza, please tell me what are the metallic minerals and non-metallic minerals. Miss, metallic minerals resources are minerals that contain metallic elements. Example, mineral include iron and copper, and non-metallic minerals include clay and dolomite. What is And the they are most the minerals important that do not have metallic elements in them. metallic minerals? Which can मिस easily. आपकी आवाज सही नहीं आ रही. Now, am I audible to all of you, right? Yes. Yes. Vasil, I'm asking what is the most important property of metallic mineral? Iman Talha. Ji Iman, speak up. Then please open your camera first. मिस एक मिनट. Ji Iman. Beta, you are taking too long. Hurry up. पता नहीं. Yes, Sayyida Mahanur, Mariam Fayyad. Please explain me what are the non-metallic minerals? Anshra, are you there? Unmute your mic. Yes, miss. Yes, please open your camera first. मिस मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ. Yes, Anshra. पता नहीं मिस, मुझे समझ नहीं आया. पता नहीं. Okay. So, can anyone explain me? Would anybody would like to answer? Sahal, Dur Muhammad, Kainat. Shifa, please tell me what are the non-metallic. The non-metallic minerals do not have metallic elements in them, and they are good insulators of heat and electricity. Good, great. Yes, and any other property? Okay, now basically the main difference between the metallic and non-metallic minerals, that metallic they are good conductor of heat and electricity. Okay, they can easily catch the electricity, and you can say they can easily you can catch the electricity and the heat basically. Okay, and the other differentiation of the non-metallic, because they are insulators. इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इजीली कैश नहीं करते आपकी हीट या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए वो नॉन मेटालिक में आ जाते हैं. ठीक है, वी हैव टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर विद द नेक्स्ट वन. नाउ energy mineral resources, you can see on page number 90, right? Energy mineral resources. And what are the energy mineral resources? Basically are mineral resources that people use to produce or to produce electricity, petroleum, right? Because you people मिस आपकी आवाज बहुत अटक रही है, आवाज नहीं आ रही. आ रही है मिस, बहुत कुछ कह देगा. मिस बीच बीच में चली जाती है आवाज. okay, now you can hear me? गई है मिस आपसे, नाराज होती Abdullah. रहती. Yes, Sorry. miss. मिस Okay. ठीक. Fine. Okay, now basically what is the role of coal, especially in the especially as an energy mineral resource? The reason is because most of जो आपके normally coal है वो आपके electricity produce करने में help करता है, and especially power plants को
इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. वो किस तरीके से करता है, वी विल डिस्कस इन द सेम स्लाइड. Coal is an important energy mineral resource. Common types of coals are bituminous coal and anthracite coal. अब आपके पास कोल में भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट जगहों पर यूज हो रही होती हैं. बिटुमिनस कोल, ब्लैक एंड समटाइम डार्क ब्राउन, often with well defined bands of bright and dull material. It is used primarily as fuel in electricity power generation. देखिए इस बहुत सारे जो हैं आपके स्पेशली इंडस्ट्री अगर आप चले जाओ, ठीक है, जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें जो पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है, ये आपके जो कोल है वो यूज होता है, स्पेशली द बिटुमिनस कोल यूज हो रहा होता है. एंड दिस कोल बेसिकली कंटेन्स 86% कार्बन, और जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज है वो डिफरेंट मिनरल्स का मौजूद होता है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उसमें. दिस इज कॉल्ड द बिटुमिनस कोल. एंथ्रासाइट कोल क्या होता है? हार्ड ग्लॉसी ब्लैक कोल दैट इज यूज्ड फॉर होम हीटिंग एंड स्टील मेकिंग. स्पेशली जो हम लोग अपने घरों में कोल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एंथ्रासाइट कोल कहलाता है. वो इतना ज्यादा आप ये कह सकते हो कि इतना ज्यादा हार्ड, इतना ज्यादा हीट इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो अगर आप कम क्वांटिटी में भी लेंगे तो इट कैन बी यूजफुल. एंड इट कंटेन्स 86 to 97% कार्बन, and the rest of the percentage is you can say the other element exists in that anthracite coal. Coal is widely used as industrial energy resource to generate enough heat to melt metals, ठीक है, because you can people say that के tons, especially in kilograms में आपके जो tons में है ये coal use हो रहा होता है किसी भी power plant को start करने में, ठीक है. जो नॉर्मली आपके पास कोल होता है वो टन्स में जा रहा होता है किसी भी एक प्लांट में, वहां पे उसको हीट दी जा रही होती है. जब वो हीट उसको बर्न किया जा रहा होता है, जो उस बर्निंग से जो हीट जनरेट हो रही होती है वो हीट ट्रांसफर होती है उस पावर प्लांट के अंदर, उस प्लांट के अंदर. जब वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है तो बेसिकली वो उसको इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप ये कह सकते हो उसमें स्टार्ट करने में, उस इंजन को या कंबस्शन इंजन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है. Coal, okay, now in steel making, coal is used to make coke, a necessary component in turning iron into steel. Basically, ये coke एक आप ये कह सकते हो ये mineral है. आवाज वापस चली गई, आवाज नहीं आ रही. बस आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज गायब. Now am I audible to all of you? यस मैं. आवाज आ जाती है वरना उससे पहले आवाज नहीं आ रही होती. मिस अभी भी कट कट के आ रही है. वापस ही चली गई मिस, कभी जाती कभी आती है. हम बोल रहे हैं बस पर्सनैलिटी आ गई है माइक में. अभी भी गई मिस, अभी तक नहीं आई. नहीं. These elements that आवाज नहीं आ रही. मिस आपकी आवाज नहीं आ रही. right now you can see over here that it occurs naturally in the ground as black liquid and is composed mainly of a mixture of hydrocarbon and other organic compounds. Now what is this? Basically that everybody knows that जो भी natural resource है people can easily find inside the in the ground, basically inside the earth surface, ठीक है. Sometime कुछ ऐसे minerals होते हैं people can easily find especially on the earth surface, लेकिन but कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिगिंग करनी होती है अंडरग्राउंड, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ये मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स यू कैन से अ लॉट ऑफ कॉस्ट, ठीक है. इसमें बहुत सारा कॉस्ट भी लगता है, इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है, मशीन्स यूज हो रहे होते हैं, लेबर यूज हो रहा होता है इन सारे एनर्जी रिसोर्सेज को निकालने के लिए. इट इज मेड इनटू मैनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड वाइडली यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्स to move motor vehicles fitted with petrol burning engines. Now you can see in the next one,
Petroleum is also used as an industrial resource to produce many pharmaceutical and different types of plastics. ठीक है, पेट्रोल या जो भी आपका डीजल है वो आपके पावर प्लांट्स को भी चलाने में हेल्प कर रहा होता है. और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके पास पेट्रोलियम से बनते हैं? यू कैन सी these are the other types of petroleum: gasoline, distillates such as diesel fuel and heating oil, jet fuel, waxes जिसको हम paraffin wax बोलते हैं, lubricating oils. These all are types of petroleum basically, and they all are used in different type of products. Yes, anybody has any question? Yes, Maria. Yes, Maria. Yes, speak up. Maria, your voice is not clear. Your voice is not clear. Can you write? Oh, Maria, can you write on chat box? What is your question? Yes, please. Okay, anybody has any question up till now, you will may ask. Shabir, Shifa. Okay, what is heating oil? Okay, बेसिकली नॉर्मली ऑयल जो आपके बर्निंग के लिए किसी भी आप ये कह सकते हो जो आपके पावर प्लांट्स होते हैं उनमें ये ऑयल डाला जाता है. इनमें सिर्फ जो डिफरेंस आता है उनके मिनरल्स का आता है, ठीक है, या कुछ एलिमेंट्स का आता है, कुछ केमिकल्स का आ रहा होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल डीजल है, डीजल बहुत ज्यादा थोड़ा सा थिक होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेट्रोल, राइट? Yes, all fuels are different for all vehicles. Yes, it depends upon the engine as well. मोइस, ठीक है, इंजन पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वो हाई कंसिस्टेंसी का है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब डीजल है, अगर मैं किसी एक आप कह सकते हो एक बड़े ट्रॉलर को जो है मैं वो पेट्रोल पे चलाऊं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल सीएनजी गैस पे चलाऊं, तो उसका इंजन क्या होगा, डे बाय डे उस तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. ठीक है, उसकी स्पीड उतनी नहीं होगी उस जो भी व्हीकल है. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द व्हीकल आपके जो ये प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम हैं वो यूज हो रहे होते हैं. ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ये वो ऑयल्स होते हैं जो आपके नॉर्मली जो आपके पार्ट्स होते हैं, लुब्रिकेटिंग पार्ट्स होते हैं, व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको बेसिकली ये चार्ज कर रहा होता है. ठीक है, उनको ऑयलिंग दे रहा होता है. अब फॉर एग्जाम्पल अब कुछ आप ये कह सकते हो कुछ क्वांटिटी जो है वो ऑयल की या पेट्रोलियम की वो पैराफिन वैक्स में भी यूज हो रही होती है. ठीक है, बेसिकली दीज पैराफिन वैक्स यूज स्पेशली इन सैलून्स. नाउ you can see mineral resources extraction. Okay, now you can see on page number 91 as well of your book, mineral resource extractions. From where do we get these minerals? ठीक है, हमें minerals कहाँ से मिलते हैं, इनका extraction point क्या है? ठीक है, minerals are found in rocks in the ground. To use these minerals they have to be taken out of the ground either through mining and quarrying and drilling. ठीक है, ये आपको बेसिकली टाइप्स दिए गए हैं कि किस तरीके से मिनरल रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. एंड वी ऑल नो दैट ऑल आर एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, अंडरग्राउंड होते हैं कुछ, ऑन द सरफेस यू पीपल कैन इजीली फाउंड दीज मिनरल्स. लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं स्पेशली फॉर आप ये कह सकते हो पेट्रोलियम और स्पेशली गैस. ठीक है, जो नेचुरल economy. Okay, now you can see the number one is mining and mining. Yes, Maheen. You have a question? मिस आपकी आवाज अटक रही है, जा रही है फिर आ रही है, अटक के जा रही है बार बार. अब नहीं हो रहा बिल्कुल भी. मिस अभी हो रहा है, अभी हुआ है, फिर से हुआ है.
Okay, and mute. Okay, mute your mic, Mahin, first. Yes, Shifa, can you people hear me? Abdullah. Okay, Mahin, please check your internet issue. Okay, mining refers to the extraction of valuable minerals from the earth through the process digging, drilling, or blasting. It depends upon the you can say mineral resource from where do we get these minerals. ठीक है, depend करता है कि वो कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो अंडरग्राउंड है वो मिनरल. ठीक है, डिगिंग के थ्रू भी वो मिनरल्स निकाला जा सकता है, ड्रिलिंग के थ्रू भी निकाला जा सकता है और ब्लास्टिंग के थ्रू भी. कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि जब उस जगह को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को व्हेन नॉर्मली व्हेन पीपल ब्लास्ट या फिर वहाँ पे एक्सप्लोजन कर रहे होते हैं, एक्सप्लोसिव कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव्स भी यूज हो रहे होते हैं, तो उनके थ्रू आपका वो मिनरल रिसोर्स निकाला जा रहा होता है. ठीक है, ड्रिलिंग में मोस्टली द पीपल यूज ड्रिलिंग मशीन्स. ठीक है, स्पेशली जो कि आप ही कह सकते हो जो 50 किलोमीटर्स लॉन्ग होती हैं या 100 किलोमीटर्स लॉन्ग होती हैं, तो वो ड्रिलिंग मशीन्स यूज की जा रही होती हैं. डिगिंग की जा सकती है जो नॉर्मली हम लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं, उस तरीके से भी डिगिंग का प्रोसेस होता है, बट वी नीड मोर लेबर फॉर दिस, राइट. क्वेरिंग refers to the extraction of rocks. We will continue in the next slide. Yes, Abdullah Amir, please speak up, beta. Yes, Abdullah. Yes, are you saying आपकी something? आवाज वापस फिर कभी जाती है फिर कभी आती है, थोड़ी देर के लिए सही होती है फिर खराब हो जाती है. अभी तो सही है लेकिन No. फिर खराब हो जाती Which I have said recently, you people have heard this thing. है. सुनाई तो दिया थोड़ी थोड़ी. Okay, मैं दोबारा explain कर देती हूँ, no problem. We were discussing about that माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड ड्रिलिंग. ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग में मैंने आपको बताया कि 3 प्रोसेस होते हैं, सब प्रोसेस डिगिंग, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग. एंड क्वेरिंग में सिंपल एक डिगिंग और कटिंग का ऑप्शन होता है. और क्वेरिंग में होता क्या है बेसिकली, you can see in your book as well. What is the next one is mining and querying. Yes, you have any Dur, raise your hand. So what is the problem? मिस आपकी फिर आवाज थोड़ी देर के बस लिए चली आवाज गई. नहीं आ रही आपकी. Now am I audible? Okay, great. Fine. Now the next thing is underground mining. What happened in the underground mining? This underground mining, shafts, tunnels are constructed inside the ground where the minerals, iron, silver, copper, zinc, lead, coal, etc. Right? Basically, what happened in that underground mining? अंडरग्राउंड माइनिंग में होता क्या है, बेसिकली इसमें एक टनल बनाया जा रहा होता है. ठीक है, किसी मिनरल रिसोर्स you.
Okay, now let me check this issue first. Now you can see this diagram. This diagram is related with the underground mining. You can see what the people do basically. ठीक है, open pit एक बड़ा सा जो है वो आप ही कह सकते हो एक digging area बनाते हैं जिसको हम गड्ढा भी बोलते हैं उर्दू में. ठीक है, you can see over here that this is the tunnel is going inside the ground. ठीक है, basically ये tunnel especially जब बनाए gold mining की जा रही होती है या coal mining की जा रही होती है. ठीक है, और दूसरे अदर रिसोर्सेज को निकाला जा रहा होता है. ठीक है, दिस इज द रीजन कि टनल बनाया जा रहा होता है. सम टाइम 50 किलोमीटर्स लॉन्ग होता है, 100 किलोमीटर्स लॉन्ग होता है. डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से द डेप्थ दैट मिनरल रिसोर्स के वो कहाँ जाके मिलेगा. एंड इट्स यू कैन से इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट्स अ कॉस्टली एज वेल. Method usually used to extract petroleum or crude oil from the ground. This can be done on land or in the sea. Offshore drilling is a mechanical see the same thing on page number 92. Okay, now the drilling is given, the drilling machine is given, especially drilling used to extract the petrol